I'm doctor in chemistry and purely from the education background. And I keep on developing new things for the betterment of the students. So now I've got an opportunity to discuss more about the how this TELC exam is different from GOITHE, or both the exams are equal. It's not that the TELC is more or the GOITHE is more. Both the exams are equal. Only the pattern is slightly different. The syllabus is same. Everything is same. Now we have got an advantage with the TELC examination. Am I audible to everybody? Yes, sir. Quite Yes, right. sir. Yes, yes, sir. So we'll take you directly to the pattern of examinations. So after completing the entire listening the entire system of TELC examinations, you will be open for any kind of discussions, any kind of problems you are facing, how this examination has to be conducted. We are open for the discussions. So just go through. I will request my HOD to join it down and explain you the entire TELC examination. Okay. Yes, please. Yes. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी B1 का एग्जाम देने वाले हैं, कुछ B2 का देने वाले हैं, शायद C1 का देने वाले हैं. सो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो किस तरह से डिफरेंस है, और मेनली हम लोग इस बात पे भी ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि टेल्क एग्जामिनेशन कैसे काम करता है, कैसा एग्जाम होता है, कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें आने वाली हैं. Hello, sir. हेलो. Can everyone hear me? Yes, we can hear you. Okay, can Most you welcome. see the screen? Yes, Can you please. see Yeah. the screen? We get this in an Yes, sir. Ayush, Allah. Okay, so we are going to see the exam. So this is a sample paper for TELC. Okay, so we have this UBOOM test. I hope you can see the screen. Yes? Yes, we can. Okay, so we are going to start. So Yeah. first we are going to start with the lesson tile. So in the lesson, like the exam is basically the same. It is same as in GOITHE. So we have the 4 parts: reading, listening, writing, and speaking. So we'll start with the lesson tile. So lesson tile 1, we have these titles, few titles or few headings. So for example, immer deutsche Familien reisen mit der Bahn, oder der Computer, liebstes Hobby von Deutschlands Frauen. And then we have these texts. So what we need to do is we need to match the titles with the text. Okay, so whenever we are going to read the text, so the texts are smaller. Like in GOITHE exam, when we are reading the text, these are very lengthy texts, and then we have multiple choice questions and we have to find the right answer. Here the texts are smaller, and when we read this small text, we can always get, हमको समझ में आ जाता है कि इसका टाइटल क्या होगा. We can always make out what is the content, what is the inhalt here that we are talking about. एक दो Schlüsselwörter, एक दो keywords पढ़ के we can always get the answers. Okay, so these are the titles here, and we have to match the titles with the right text. Okay, so this is Lesson Tile 1, and we have only 5 questions here. Okay, so then we come to Lesson Tile 2. Lesson Tile 2 is again a text. And then we have multiple choice questions like we do in GOITHE exam. So we need to read the text carefully. We need to read the questions carefully, and we have to find the right answer. Okay. Then we come to Leser Verstehen Teil 3. Isme it is same as in GOITHE. We have to read the some statements, or un statements ko we need to match with the passender, Anzeiger, or the suitable statements, suitable advertisements. So again, in GOITHE, there is one statement jiska koi answer nahi hota. Here the difference is, or sometimes 2 statements. Here the difference is there are always going to be 2 statements jinka koi answer nahi hota hai. So we are going to read the statements carefully. 11 to 20. These are the questions 11 to 20, और हम इन statements को पढ़ेंगे और उससे related हम Anzeiger advertisement find out करेंगे, और उसके पास 2 हमेशा options होंगे जिनका कोई answer नहीं होगा. So we have to match. Okay. So what I think is that it is very easy. For 60 minutes we have to only do
3 questions as compared to Goethe. Goethe में we have in 60 minutes we have to find the answers for 5 parts. 5 tiles होती हैं. In TELC we have only 3 parts जिनके हम आराम से आसानी से we can find out the questions. We can find the answers to the questions. ठीक है? And I can explain to the laser first hand tile once again. So the first part is where we have the titles. हमारे पास titles है. हम इन titles को read करते हैं और इन titles को हमको हर एक text को देना होता है कि which title suits what text. और अगर if we are following the network और कोई भी book ऐसी जो related है Goethe से या कोई भी related है B1 exam से for the German exam, तो in these books we have always these exercises. हमारे पास ये exercises होती हैं. In fact B1 का जो first chapter है network का उसमें we have the same exercise where the titles are given and we have to find the right answer related to the paragraph. ठीक है? उसके बाद we will come to laser first hand tiles Y where we are reading the text and we have to find the right answer. It is same as it is in the Goethe. And then laser first hand tile dry, again we have to read the statements and we have to find the right advertisement which is suitable to the statement, which is suitable for the statement, and there are going to be 2 answers. और ये 60 minutes मिलते हैं हमको ये करने के लिए, which is very easy to do, and the text is always easier as compared to Goethe. Goethe में the level is little higher and the language and everything is 20 to 30% more upgraded. Here it is not so. ठीक है? Then we come to the, ये भी reading का ही एक part होता है, which is so the reading exam combined it is for 90 minutes. जिसमें 60 minutes ये text read करने के हैं and 30 minutes is for the Sprachbausteine. Combine ये 90 minutes का होता है. तो अगर आप text read करके if you are finding the answers in 45 minutes, आपके लिए 45 minutes हैं to do this grammar part. ठीक है? इसमें the tile eins, what is tile eins? इसमें we have this paragraph. तो जब आप paragraph पढ़ते हैं you can always get to know कि what is this paragraph about. And then we have the multiple choice questions for these blanks. तो जब आप ये blanks देखते हैं, so then you can always say like for 21, we have these 3 multiple choice questions, aber, then, sondern. तो अगर हमने so this Sprachbausteine part, it is always based on grammar. और अगर हमने ग्रामर अच्छे से करी हुई है B1 में like aber, then, sondern, it is very easy. connectoren जो हम A1 से कर रहे हैं osuda, so these connectoren we can always fit in these. हमें पता है रूल क्या है, हमें पता है verb की position क्या है, so we can always guess कि अच्छा कहाँ पे कौन सा verb आएगा, कौन सा connectoren आएगा, so we can fill in the blanks. ठीक है? So हर एक के लिए we have 3 options, and when you know the grammar which is very easy like trotzdem, wegen, weshalb, कोई ऐसा word नहीं है जो हमें नहीं आता है या जो हमने नहीं किया हुआ है. Minor, 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 so you can always fill in the blanks with the right option. ठीक है? उसके बाद we come to Sprachbausteine tiles Y. It is again the same fill in the blanks type of questions. और इसमें भी पूरा पैराग्राफ आपको गिवन है. सो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट हियर, कि जैसे यहाँ पे एक होटल की एडवर्टीजमेंट गिवन है, यहाँ पे एक टेक्स्ट गिवन है और वो टेक्स्ट एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होगा. सो देन यू रीड द टेक्स्ट and then you can always fill in the blanks. But इसमें एक ही problem है that for all these 10 blanks we have 10 options. तो हमको खुद से decide करना पड़ता है कि कौन सा word कहाँ पे जाएगा. But if we understand the text, अगर हमारी vocabulary हमें समझ में आ रहा है कि किस बारे में टेक्स्ट है, और फिर अगर हमें ग्रामर भी पता है कि जैसे इंटरजियरन है तो उसके साथ फ्यूर आएगा, अगर कनेक्टोरन है कहाँ पे वर्ब पोजीशन है, कहाँ पे क्योंटन म्यूस्टन आएगा क्योंकि एंड में एक वर्ब गिवन है. सो वी कैन ऑलवेज फाइंड द राइट आंसर्स वेरी इजीली. वन कब यूज होता है, व्हेन कब यूज होता है, मीनिंग क्या है, इसमें मीनिंग के हिसाब से कौन सा वर्ड फिट इन हो सकता है. सो देन वी कैन फाइंड द आंसर्स.
So it is not a very difficult thing to do. और अगर आपको जिस समझ में आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है और आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात चल रही है, तो आप कई बार अपने आप ही आपको आंसर्स आ रहे होते हैं एंड यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स. ठीक है, सो दिस इज द Sprague-Baumsteiner पार्ट. अब आपको टोटल, क्योंकि ये डिजिटल एग्जाम है, तो टोटल आपको लेसन और ये ग्रामर वाले पार्ट के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं. तो अगर आपको लेसन थोड़ा इजी लग रहा है और वो आपका 45 मिनट्स में या सिर्फ 50 मिनट्स में हो गया, सो यू हैव एन एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल टाइम फॉर दिस ग्रामर पार्ट. एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग एन एडेड एडवांटेज. आप आराम से ये वाला पेपर कर सकते हैं. और दूसरा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम गोयते, क्योंकि गोयते में ग्रामर नहीं आती है, वहां पे सिर्फ रीडिंग होता है. और अगर आपको टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो you are completely fully based on the text only, reading part only. Here we have the grammar also, additional advantage कि आपको ग्रामर की अगर रूल्स पता है, कंसेप्ट्स पता है, so you can always use that knowledge कि आपको ये 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और प्लस आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है 90 मिनट्स, so you can always get more marks and it is easy to clear the exam. ठीक है, उसके बाद let us come to the listening part. Listening part गोयते के एग्जाम से काफी इजी है. So here in TELC we have 3 tiles और तीनों में आपको सिर्फ yes or no find out करना है. Here first 10 tile lines, here first 10 tile zwei, here first 10 tile drei. आपको statements पढ़नी है. Background में एक text चल रहा होगा. So you are going for the first tile. आपको 5 is you listen to 5 small text and आपको true or false find out करना है based on that. ठीक है, and this is Einmal, but it is easy to do because ये हम लोग A1 में भी करते हैं, A2 में भी करते हैं. So we know कि अच्छा पीछे टेक्स्ट चल रहे हैं and the other sentences are given here. और अगर आप sentences पढ़ रहे हैं, so the expression muss im Haushalt fast alles allein machen, so you can understand language is very easy. Just speak career, she has to do everything alone in the house, so you can easily find out the answers. ठीक है, then Excuse me, ma'am. we have yes. आपके 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 क्वेश्चन लास्ट में लेंगे. एक बार मैडम एक बार पूरा प्रेजेंटेशन दे देते हैं, लास्ट में अपन क्वेश्चन लेंगे, बीच में फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू. ठीक है ना, क्वेश्चन आपके लास्ट में लेंगे. एक बार मैडम को प्रेजेंटेशन करने दीजिए. थैंक यू. Thank you, sir. Then we come to here first 10 tile zwei. Here first 10 tile zwei में again, but this tile is for zweimal, twice. हम इसको सुनेंगे और अगेन हमारे पास 46 से 52 तक क्वेश्चंस हैं और हमको अगेन we need to tell true or false, richtig or false. Then we have tile 3 and here also we have questions and again true or false. So it is easy as compared to Goethe because Goethe में we have 4 parts और उसका जो second part होता है it is also very difficult. और जो last part होता है जिसमें 3 लोग बोल रहे होते हैं, so moderator और 2 लोग और जिनका interview चल रहा होता है, so it is very difficult to make out. और वो हमेशा students को बहुत difficult लगता है कि क्या बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा. तो अगर आपको टेल की अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आपने 6, 7, 8, 9 सैम्पल पेपर्स करके देखे हैं, सो लिसनिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड प्लस टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है. योर फर्स्ट 10 में जैसे ट्रैक चलेगा वैसे वैसे आपको सुनाई देगा एंड यू हैव टू मार्क द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद वी हैव Schriftlicher Ausdruck, which is writing a letter. So here, when we are writing the letter, Goethe mein we have 3 parts. First part, informal letter, 30 to 40 words. Second part, we need to write our own opinion for 80 words. And third part, we have to write the formal letter for 80 words. यहाँ पे we have to write only one letter. और वो लेटर भी गिवन है, द ईमेल इज गिवन. आपको वो ईमेल पढ़ के यू हैव टू रिप्लाई टू दैट ईमेल. बस आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ईमेल कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू, व्हाट इज द सिचुएशन हियर. तो जब आप ईमेल पढ़ते हैं तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि आपका फ्रेंड है वो आपको बुला रहा है या वो आना चाहता है
या वो आपसे कोई ओपिनियन लेना चाहता है अपनी किसी सिचुएशन पे, तो द मेन थिंग इज कि आपको ये लेटर बहुत ध्यान से पढ़ना है, व्हाट इज द सिचुएशन हियर, और उसके अकॉर्डिंग जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको आपको आंसर करना है। कई बार वो बोलते हैं कि जो सिचुएशन है उस पे आप रिएक्ट करो, या आपको इनवाइट किया है उसके ऊपर आप रिएक्ट करो, और फिर आपको ये 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। सो यू गेट 30 minutes to write this letter, and if you understand the letter completely कि आपसे क्या पूछा गया है और आपको उसका आंसर करना है पॉइंट बाय पॉइंट। बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है दैट ऑल द 4 आंसर्स दे शुड बी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर, और आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लाइक the spelling mistakes or the capital letter, first letter of the noun should be capital. अगर आप उस पे थोड़ा सा वर्क करते हैं and you practice your writing on the laptop instead of writing it on the paper, so it is very easy to do the writing. एक ही लेटर लिखना है, एक ही बार आपको सोचना है, and also the situation is given, the person's name, and it is always informal or semi formal. Formal letter बहुत कम होता है, so you can always write this letter. ठीक है, so this was the writing part. Now we come to the mündlicher Ausdruck, which is the speaking part. तो speaking part में Teil 1, einen anderen kennenlernen, to get to know each other. इसमें वही basic interview के questions होते हैं जो आप A1 से करते आ रहे हैं. Wie heißen Sie, wie alt sind Sie, wo wohnen Sie, woher kommen Sie, welche Sprachen sprichst du, all these. Informal और formal वो आप decide करेंगे आपने कैसे बोलना है, but you have to ask the basic questions to each other. और गोइथे में और टेल्क में द डिफरेंस इज लाइक गोइथे में बेसिकली जो भी हम स्पीकिंग करते हैं सिर्फ सुजामन प्लानन को छोड़ के इट इज मोर अबाउट द प्रेजेंटेशन. एक ही पर्सन को अपना प्रेजेंटेशन देना होता है और एक ही पर्सन बोल रहा होता है. टेल्क में द डिफरेंस इज दैट इट इज ऑलवेज इंटरेक्टिव. सो इफ आपका पार्टनर इज गुड और इफ यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, सो हमेशा इंटरेक्शन होता है, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे बोलते हुए यू कैन ऑलवेज गिव द टेल्क का स्पीकिंग पार्ट. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो कि एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहे और आपको अपना इंट्रोडक्शन ही देना है. यू एंड योर पार्टनर दे विल आस्क द क्वेश्चंस टू ईच अदर. सो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि आपका पार्टनर आपसे क्या पूछ रहे हैं और आपके पार्टनर को आपका समझ में आ जाएगा. सो यू कैन इजिली गिव द एग्जाम आस्किंग द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के wie heißt Ihre Familienname, wo wohnt Ihre Familie. So it is Teil 1, introduction, जो हम A1 first chapter से करते आ रहे हैं. So that is Teil 1. Then we come to Teil 2, which is über ein Thema sprechen. So it is the same as कहते हैं हम एक theme के बारे में बात कर रहे हैं, Gruppenreisen, which is again थीम की हम ग्रुप में ट्रैवल करना चाहिए या फिर हमको अलोन ट्रैवल करना चाहिए. तो हमेशा इट्स ऑलवेज द ओपिनियन ऑफ 2 people आर गिवन हियर लाइक Gruppenreisen. So this is Eine Frau, she is giving her opinion, so the text is given here, okay, and a picture, and then the second person ein Mann, and the text is given here and the picture. Okay, so what you need to do is कि आपको पहले the first part of this is like आपको 3 parts में divide करना होता है ये speaking. First is you have to tell about the कि text में क्या given है. You have to give the text to your partner. आपको बताना है अपने partner को कि text में क्या given है. So, for example, you'll tell your person, es gibt eine Frau, sie heißt Sabine Klostermann, sie ist 33 Jahre alt, sie ist Bürokauffrau und sie hat gesagt, and whatever she has said, you have to tell, dass sie reist gern in einer Gruppe und sie reist, weil sie mag neue Leute kennenzulernen und sie denkt, dass allein zu reisen macht keinen Spaß. So whatever you think, you have to
tell it to other person, and then the second person, then you can ask, okay, what's that deiner person, and then you have to tell the other person will tell you, दूसरा आदमी आपको बताएगा कि what is there in the text. For example, he will tell, okay, diese Person, reist immer allein, denkt, dass, wenn im Gruppe reist, dann ist es sehr problematisch. So whatever. Okay, so whatever is given in the text, you have to give the text further to your partner. And then the second part. अब इसमें इंटरेक्शन हो रहा है आप दोनों का. सेकंड पार्ट में आप पूछोगे, ओके, व्हाट इज डाइनर फारूक, फिर वो बताएगा इश राइजर इमर अलाइन, इश राइजर इन आइनर ग्रुप. फिर आप अपने पार्टनर से पूछोगे, ओके, was we is Tirer Farung, was Marks do, we reised do, how do you travel? And then it is like that. So it is always interactive. So you can talk to each other, talking about the experience, talking about the opinion. So this is the expression style swile. Okay. And then Teil 3, it is always the same. Zusammenplanen. Whatever we do, whatever we plan, sometimes the different situations we plan together, that is the same as Goethe B1. So we do the planning together for some kind of, like, we are organizing a party, we are organizing a farewell party, we are organizing a birthday party. So this is Teil 3. Okay. So now let us come to the marks, how the marks are given. So like in every B1 exam or every German exam, the passing marks are 60%. Okay. So for the reading, writing and speaking. मैडम आप लोगों को एक फर्क दोनों में कैसे है वो सब समझा रहे हैं आपको, कि किस तरीके से इसका राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग दिखता है, और गोएथे का आपको ऑलरेडी पता है ना. सो दोनों में डिफरेंस क्या है. वहां पे इंडिविजुअल में आपको 60 मार्क्स लाने होते हैं, राइट, कि सभी में अलग अलग 60 लाने हैं. मैडम बताएंगे इसमें किस तरीके से है. ठीक है. इसमें 3 को एक साथ में क्लब कर दिया कि किसी में मान लो कुछ मार्क्स कम भी आ गए, तो दूसरे में अगर आप ज्यादा लेके आते हो तो ओवरऑल वो पास हो जाता है, और स्पीकिंग वाला अलग से पास करना होता है. सो कई लोग इस बात को बहुत ही ज्यादा इजी के तौर पे भी नहीं ले ले. वो आपको फर्क बता रहे हैं दोनों में, कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा एक्सपीरियंस है कि उनको टेल्क में ज्यादा इजी लगता है, राइट, तो वो इंप्रेशन हम लोग बता रहे होते हैं. बाकी तो ऑफ कोर्स गोएथे करने वाले वो भी पास कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह से क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको दिखेगा वो चीज एक्सप्लेन आपको की जा रही है यहाँ पे. जी, ओवर टू यू नमता मैडम. Can you see the document, the Word document? Yes. Yes. Okay, Clear. so we have the first Leseverstehen. For the Leseverstehen, it is for 75 marks. Only where I have shown you that there are three tiles to reading. Then we have Sprachbausteine, which I told you that there is a grammar part. Again, it is for 30 marks. Then we have Hörverstehen. Hörverstehen is where I have told you that we have 3 parts for the listening part. So again, it is for 75 marks. And then Schriftlicher Ausdruck. Schriftlicher Ausdruck is the writing the letter, and it is for 45 marks. Okay. So this is part 1. ये part 1 है जिसमें the total marks they add up to 225. ठीक है. तो ये part 1 क्लियर करने के लिए we need at least 60%, which is 135 marks. ठीक है. सो गोएथे में व्हाट वी डू इज लेसन का हम अलग से एग्जाम ले लेते हैं, लिसनिंग का अलग से, रीडिंग का अलग से. और अगर हमारा रीडिंग का या राइटिंग का क्लियर नहीं हुआ है, लाइक इवन इफ आई एम गेटिंग 59 मार्क्स इन रीडिंग, उसके बाद भी मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा बिकॉज वो 60 नहीं है. यहाँ पे इफ लाइक माई राइटिंग इज गुड,
और अगर मेरी ग्रामर अच्छी है या मेरा लिसनिंग अच्छा है, तो अगर दूसरे में थोड़े मार्क्स, then I can always clear the exam. ठीक है, तो वो हर स्टूडेंट को अपने लिए खुद से स्ट्रेटेजी बनानी है कि वो किस चीज में अच्छा है और किस चीज में उसको ज्यादा काम करने की जरूरत है. सो वी हैव स्टूडेंट्स आल्सो जिनके राइटिंग में 45 आउट ऑफ 45 आ रहे हैं या 39 आउट ऑफ 45 आ रहे हैं. तो अगर आपके 39 आउट ऑफ 45 राइटिंग में आ रहे हैं, तो अगर थोड़े से कम भी आ रहे हैं रीडिंग में या थोड़े से कम भी आ रहे हैं लिसनिंग में, यू कैन ऑलवेज क्लियर द एग्जाम. एंड वी हैव स्टूडेंट्स आल्सो जिनका listening का सिर्फ एक या दो नंबर, like only one answer is wrong, so he is getting 70, 72. So अगर आपका reading और listening इतना strong है, so then we can always say कि अच्छा चलो ठीक है, इसमें we are getting full marks, तो बाकियों में अगर थोड़े कम भी आ रहे हैं, so we can always clear the exam. So ऐसा नहीं है that we cannot clear the exam, we can always clear the exam अगर तीनों का हम इकट्ठा. But yes, you need to work on your strengths and your weaknesses. आपको खुद से सोचना है कि मैं किस में बहुत अच्छा हूँ और किस चीज के ऊपर मैं मेहनत करता रहूंगा और इम्प्रूव करूंगा, सो आई कैन गेट द फुल मार्क्स देयर. और दूसरे में अगर थोड़े बहुत कम भी आ जाएंगे तो इट विल बी ओके. ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि आप लोग, आई नो कि गोयथे में हम लोग बोलते हैं कि हाँ एक एक टाइल करके एग्जाम दे लो और एक एक करके क्लियर हो जाओ, बट देन अगेन इट इज चैलेंजिंग समटाइम्स, क्योंकि कई बच्चों का इम्प्रूव ही नहीं होता है या दे आर स्टक समवेयर, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट वन एक्स्ट्रा मार्क टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है, then we come to the mündliche Prüfung, the speaking part. ठीक है, and then the speaking part, so the first जो part है जिसमें you are just giving the introduction to each other, that is for 15 marks. ठीक है, and it is easy, you can get 15 out of 15 क्योंकि वो तो हम A1 से करते आ रहे हैं, वो तो हमें पता ही है how will we ask the questions to each other. ठीक है, then Gespräch über ein Thema, so that we know that it is for 30 marks. Again, मैंने आपको बताया है that it is easy to discuss here in TELC because interactive है. आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प करते हुए you can always discuss the theme. Instead कि एक ही person है जो 3 minutes के लिए, 3.5 minutes के लिए, 4 minutes के लिए continuously बोल रहा है. Here what is the difference is that it is very interactive. You can always talk to each other, always help each other, and you can reach to the conclusion of the theme. ठीक है, this is for 30 marks. And then gemeinsam ein auf also, and बहुत सारी exercises जो हम plan करते हैं, so it is again 30 marks, easy to score. So इसमें भी the total marks are 75, and to clear the exam you need 60%, which is 45. ठीक है, I think I have made myself clear. अब इसमें only difference is कि यहाँ पे all these 3 parts are together. So if you are not, अगर आपका score 135 से less है, तो आपको ये तीनों ही देने पड़ेंगे. It is not like where you are giving only one exam. But again, अगर आपका score किसी एक part में कम है, so you can always clear the exam. अगर आपका Schriftlicher Ausdruck बहुत अच्छा है, आपका writing बहुत अच्छा है और आपका reading बहुत अच्छा है, so it is easy to clear the exam. Nothing like it. ठीक है, तो आप लोग, I think I'm done with the presentation here. Now if someone wants to ask the question, he or she can ask me the question. So one by one you will raise your hands, okay, ताकि confusion नहीं हो. आप अपना hand raise करेंगे, मैं नाम बोलूंगा और एक एक करके आपके questions होंगे, offline, online, के लिए. So the first, okay, so Sunita, you can ask your question please. सर टेल्क B1 के लिए सर कितने टाइम पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है सर? मैंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. इफ आई डोंट नो मैम ऑलरेडी टोल्ड. Right. Sir, we have an examination dates declared for the month of March. So before 15th of February, you can register for the month of March. The exam will be between 10th of March to 13th of March. Okay sir, and sir for April month? April, that is not, dates has not been declared yet.
and till date we have an intimation for the March exam. Okay, sir. Sir, how Yeah. much time before you will we are getting the information about the April session? Normally this happens once the exams are over, after 10th or 13th of March, then the next exam will be declared. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. हम आपसे सर अपडेट भी लेते रहेंगे ताकि स्टूडेंट्स Yes. को आगे इन्फॉर्म भी कर सकें. Yes, Perfect, sir. sir. Okay. Rohita Sharma, your question please. या सर सर मुझे B2 के म्यूनलिश प्रूफिंग का पूछना था. B2 का म्यूनलिश प्रूफिंग का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा क्लियर नहीं है अभी. Okay, so क्या पूछना है सर आपको? What do you want to know about it? मैम म्यूनलिश प्रूफिंग जो बेसवाई बेयांस का तो क्लियर है, बेसवाई का म्यूनलिश प्रूफिंग पैटर्न थोड़ा आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो सर. हाँ जी, so English Proof Base 5 में again the first part is जहाँ पे आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देना होता है. It could be your riser, your travel experience, or it could be any book, or it could be any film. और ये जो टॉपिक्स है वो वही 7, 8, 9, 10 टॉपिक्स है, वो गिवन होते हैं. हर एक जो भी आप टेल्क की बेस वाई की प्रूफ ऑफ फोर राइटों की बुक देखेंगे उसमें इट इज गिवन देयर. ठीक है, तो आपको उसमें से कोई भी एक टॉपिक या दो टॉपिक आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, 3 टॉपिक आप प्रिपेयर करके रख लीजिए ऑलरेडी पहले से, एंड यू हैव टू जस्ट गिव द प्रेजेंटेशन कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, दिस इज माय फेवरेट बुक और दिस इज माय फेवरेट फिल्म. ठीक है, एंड द टाइल्स वाई इज उसमें आपको देयर इज वन टेक्स्ट गिवन. जैसे इसमें द टेक्स्ट इज स्मॉलर, उसमें द टेक्स्ट इज लिटिल लॉन्गर. जैसे familiar के ऊपर आएगा कि wollen Sie in einer Familie leben oder was machen die Leute heutzutage? Wollen Sie heiraten oder nicht heiraten oder wollen Sie allein leben? They want to live alone or they want to get married. So आपको पूरा टेक्स्ट रीड करके फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू टेल अस द Zusammenfassung, you have to tell the summary of the text. उसके बाद आपको अपने पार्टनर से वो टेक्स्ट ऐसे ही डिस्कस करना है जैसे ओके दिस इज द ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज माइन Erfahrung, दिस इज माइन Meinung. और फिर आपको एक दूसरे को काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हो कि Sie haben gesagt so and so, so like that. तो आपको वो पूरा टेक्स्ट डिस्कस करना होता है एंड देन इट इज लाइक मोर ऑफ अ डिस्कशन वंस अगेन. बट फर्स्ट आपको वो टेक्स्ट रीड करके, और उसके लिए भी यू विल बी गिवन टाइम, तो आपको वो टेक्स्ट रीड करके आपको उस टेक्स्ट के ऊपर जो भी आपने रीड करा है यू हैव टू टेल द समरी ऑफ दैट टेक्स्ट. ठीक है, ओके. एंड द थर्ड पार्ट इज लाइक gemeinsam, like yes, it is the same. Okay, danke. Okay, anyone else? उन्नति चौधरी. Hello, good afternoon, ma'am and sir. Actually, Yeah. मेरा question है, I have already given my B1 exam, I have passed it, but speaking part मेरा clear नहीं हुआ. अब I have to re-give it. But उसमें मेरा एक question था, जैसे कि मेरी partner जो आई थी, उसने मुझसे question ही नहीं पूछे. इस cases में मैं क्या कर सकती हूँ? See, sir, I can answer that. Yeah. Okay. See, अगर आपके पास हमेशा it is always like that, वो टेल्क में नहीं होता, वो गोइथे में भी होता है, that if your partner is weak और वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, so then like आपको अपना जो भी आपका सुजामन प्लानन है उसको ऐसे प्रिपेयर करना है कि यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस, और आपको फिर लीड करना पड़ता है बेसिकली. You have to lead the entire conversation और फिर वो yes or no बोलता रहता है. And then again teachers को भी पता होता है कि one partner जो examiner test लेते हैं, okay, so they are also they know that कि अच्छा 2 बच्चे हैं और the one person is little weak and he is not answering the question, so they know everything, they are there. So okay, they understand कि ठीक है एक स्टूडेंट है वो आंसर नहीं कर रहा है, और दूसरे बट देन यू हैव टू टेक द लीड, और आपको उसको क्वेश्चन भी ऐसे पुट करने होते हैं कि जैसे जिसमें सिर्फ या और नाइन आंसर आता है, और धीरे धीरे करके यू हैव टू टेक द कॉन्वर्सेशन टू द एंड. आई नो इट इज डिफिकल्ट बट देन यस दिस इज द ओनली वे आउट देयर.
मैम एक्चुअली जो फर्स्ट स्टाइल था उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसमें ही उसने मतलब 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे मेरे जो उसे पूछने थे। Then probably I will say it's hard luck, but वो फिर आपके कितने मार्क्स आए थे? How many marks did you get? 12 on every time. Total was 36. हाँ तो सी ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर ने सिर्फ उसी को देखा होगा, मे बी यू ऑल्सो वर लैकिंग इन समथिंग। सी इट, मैं इसलिए हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पार्टनर वीक होता है। जब आप दोनों सेम पार्टनर होते हो या जब आप वीक होते हो, आपके पास पार्टनर स्ट्रांग होता है, सो व्हेन यू आर स्पीकिंग आपकी मिस्टेक्स इतनी हाईलाइट नहीं होती है, ठीक है। बट इफ द योर पार्टनर इज वीक एंड यू आर लीडिंग द कॉन्वर्सेशन, तो फिर आप ज्यादा बोल रहे होते हो, तो देन द एग्जामिनर ऑल्सो कम टू नो अबाउट योर वीकनेसेस कि हाँ ये स्टूडेंट वीक खुद इतना स्ट्रांग नहीं है। सो आई वोंट से कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हर you are lacking somewhere. I would suggest that you work on your speaking part also. Okay, so then I think it will be better for you for the next time because you will be more confident. और फिर अगर if you will not make any mistake, तो फिर वो हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि it is just because of the partner. Sometimes it may be that you are lacking somewhere, so you have to work on that. मैम इसके लिए कोई टेस्ट पेपर की, मॉडल टेस्ट पेपर की बुक है? क्योंकि जो मेरा आया था आफ्टर आई डिस्कस विद माय पार्टनर, तो उसने कहा था ये मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व करे थे अपने इंस्टीट्यूट में। हाँ, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत सारा मटेरियल टेल की प्रूफ 4 ब्राइटों की बुक्स भी है, 2-3 है, सो यू कैन ऑलवेज बाय दोज बुक्स, ऑर्डर ऑनलाइन, और बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल भी है। ओके, थैंक यू मैम। Okay, next one is Tarachand Saini. गुटन टाग मैम, गुटन टाग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैम जो हमारा यूरन का पार्ट होगा वो सारा ऑनलाइन होगा, तो उसमें हमें हेडफोन अलाउ होंगे क्या सुनने के लिए या? हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम, गुड क्वालिटी हेडफोन्स विद गुड क्वालिटी कंप्यूटर है हमारे सेंटर पे, सो देन यू कैन ऑलवेज कम। It's a very good question. The lab which we have in Chandigarh for testing lab, that is the latest lab we have established, where before starting the examinations, it has been compulsory to test each and every computer, whether that voice is audible. And second advantage is, before starting the test, the student will decide at how much volume they want to do it so that it will be convenient for the students. And the test will start for all the students at one time. Got my point? So that problem will not be there. हाँ सर, वो दिक्कत वही थी, मतलब Yes. ऑनलाइन हो Mirko, I know that in some of the centers the issues are there with the mic, but since we have a latest system here, so that issue is not there. So आपको पूरा चांस मिलेगा जब आप बैठे होंगे, आपका टेस्ट होगा, आपका माइक टेस्ट होगा, you will yourself will test your mic. Once all the students will be done with their mic systems, only then the test will start. ओके सर, थैंक यू सो मच। Yeah. Okay, the next one is Supriya. Hello, good afternoon, sir, and ma'am. Ma'am, I have 2 questions regarding B2 TEL. Ma'am, for B2, your and Teils Y, es ist immer Hochdeutsch oder Schwedendeutsch? Because es ist sehr schwierig zu verstanden. Teils Y, your and Teils Y, Bets Y. So, ich kann nicht sagen, ob es ist immer Hochdeutsch oder es ist immer Schwedischdeutsch, aber wenn Sie sich gut darauf vorbereitet haben, dann ich denke, es gibt kein Problem und ich denke, es ist meistens Hochdeutsch. Okay, aber ich habe schon die B2-Prüfung, TEL B2-Prüfung gegeben, aber es war sehr schwierig für mich zu es verstanden. Ich glaube, es war Österreich-Deutsch, aber es war nicht Hochdeutsch. Okay, so was ich kann machen ist, ich schicke Ihnen ein paar Links, so dann Sie können sich darauf noch einmal vorbereiten und dann sehen wir mal.
Ja, sehr schön. Danke schön, Ma'am. Jetzt möchte ich meine zweite Frage fragen. Welche Vorbereitung Bücher sollten wir hinweisen? So, TELC, es gibt Prüfungsvorbereitung Bücher von TELC, es gibt 2 oder 3 Bücher. Ich kann noch einmal Ihnen Namen schicken oder Devkaran Sir die Namen schicken und dann Sie können diese Bücher benutzen. Herzlichen Dank für alles, Ma'am. Danke. ओके हेलो सर, गुड टाग। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हम पेपर देंगे तो पहला तो ये सर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, और दूसरा सर रिजल्ट कितने दिन के बाद आएगा? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इस सेशन के बाद में विल सेंड द लिंक टू सर, देवकांत सर के पास लिंक चला जाएगा। उस लिंक के थ्रू पहले आपको रजिस्टर करना है। वंस यू Yes. गेट रजिस्टर में सिंपल आपका नाम आएगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, 3-4 चीजें आपको फिल करनी है। And once we get your mail, that registration form, you will automatically get a mail from the center that you need to deposit the money. Now the best part is, इस case में we are the only center where we accept the money in Indian rupees. You don't have to deposit the money in euros. That is the best Yes. part. And once you deposit the money, it is only the date is going to be confirmed. Your seat is confirmed. Once you get a link and you paid the amount, your date will be announced just 1 week before the examination. That will be between 10th March to 13th March. It is also fixed. 10th March to 13th March. Okay. Yes, And sir. once you deposit the money, your confirmation is there that you are going to give the exam. सर तो उसके बाद कोई लिंक आएगा कि आपका कंफर्मेशन हो गया है? Yes, no, it is once you deposit the money, you'll get the confirmation that your registration is done. Yes. सर और रिजल्ट कितने दिन के बाद आएगा सर? Result normally it is 4 weeks to 6 weeks का time रहता है, because 4 weeks का तो original time है ही है, so it takes 4 weeks to 6 weeks. सर एक क्वेश्चन मेरा देवकरण सर से भी था कि सर जैसे कि हम पेपर देते हैं, जी सर बोल रहे हैं उस टाइम पीरियड में, तो सर उसके बाद हम मैकाट्रॉनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखो, जब वो मैकेट्रॉनिक्स टाइम निकले। आप पेपर कब देते हैं, मतलब आपके पास रिजल्ट हाथ में आ जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सर तो सितंबर इनटेक सर मिल सकता है मुझे? हाँ जरूर मिल सकता है, अभी तो आपके पास टाइम है। देखो डेट सर ने बताई है, अभी मार्च की बताई है, तो पूरे Yes, मार्च sir. में और अप्रैल के भी शुरू में पूरा चांस है आपके पास। तो सितंबर इनटेक Yes, के sir. लिए हाउस बिल्डिंग में जरूर अप्लाई कर सकते हो। आप अच्छे से अपना टाइम डिवोट करके अच्छे से प्रिपरेशन करो, जरूर कर सकते हैं। यस सर, मैं आपका बिल्कुल, आप स्टूडेंट हूँ अगर सर 10 ऑनलाइन। मार्च को 10 से 13 मार्च एग्जाम दे देते हो तो यू गेट योर रिजल्ट बाय अप्रैल, और Yes. उसके लिए आप यू कैन अपीयर फॉर द सितंबर इनटेक के लिए आप एलिजिबल हो। यस सर। बिकॉज आपको हाउस सर- बिल्डिंग के लिए आप तभी एलिजिबल हो गए जब आपके पास B1 का सर्टिफिकेट होगा। बी Yes, रेडी sir. विद द इंटरव्यू एंड यू कैन द मोमेंट यू गेट योर रिजल्ट द सर विल टेक केयर ऑफ योर इंटरव्यू पार्ट। यस सर। सर एक सवाल और था, जैसे श्राइबन होता है सर, तो हम बेसिकली प्रैक्टिस तो सर हम पेपर पे ही करते हैं, तो श्राइबन टाइल कंप्यूटर पे होगा तो सर उसकी क्या क्राइटेरिया रहेगा, मतलब कि हम पहले से प्रैक्टिस करके रहेंगे कि हमें कंप्यूटर पे देना है या कुछ ऐसा होगा? देना ही चाहिए, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जहां भी कोई आसपास में कोई लाइब्रेरी है इस तरह की या कोई कंप्यूटर सेंटर है, कहीं ना कहीं आपको उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल एग्जाम सेंटर पे ही सीधा उस पे फिर Yes, टाइम sir. का या बैठेगा नहीं प्रॉपर। यस सर। एक चीज आप लेके चलो कि आप जर्मनी जा रहे हो और आज की डेट में हर जगह जो है वो टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस है। कंप्यूटर पे तो आपको वैसे भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप जर्मनी जा रहे हो तो कुछ काम के लिए जा रहे हो ना वहां पर, तो बिल्कुल सर। एवरीथिंग इज या। और सेकेंडली अगर आपने जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी हो तो रिटन पार्ट 45 मार्क्स का है, तो आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे कंप्यूटर पे, बिकॉज एवरेज नंबर आपको 135 नंबर लेने हैं। बिल्कुल सर। Got my point? So this is the advantage. But yes, अगर आपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस की होगी, that will be more easier for you. यस सर, देन इट्स वेरी हार्ड अगर हम डायरेक्ट उसी टाइम कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करेंगे तो सर। ऑफ कोर्स आपको Yes. प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं भी, जैसा सर ने बोला, काम करोगे तो कंप्यूटर तो होगा ही होगा।
सो Okay. इट्स Yes, बेटर अंदर एंड से यू भी कैन confidence- आजकल सबके पास लैपटॉप है. लैपटॉप में ऑप्शन होती है, यू कैन कन्वर्ट योर लैंग्वेज देयर इन जर्मनी एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर नॉर्मल लैपटॉप्स एंड नॉर्मल कंप्यूटर्स. इसके लिए आपको कोई स्पेशल कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है. yes, sir. आप अपने क्लासरूम में ही आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, शाम को आके एक बार टाइप कर लो उसको. दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. Yes, sir. कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो एग्जाम प्रिपरेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं टेल्क द्योथिकी, तो टेल्क की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तो जो स्टूडेंट टेल्क का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग टाइप करके ही चेक करवाते हैं मेरे से कि भाई, तो उस तरह से आपको भी प्रैक्टिस अपना टाइप करके वो ही चेक करवाना है उसका, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए. Yes, sir. Das ist alles von meinem Seite. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिया. Yes, sir. Guten Yes. Morgen zusammen. Okay. Sir, I have questions. टेल्क और गोइते में लेजन में कितने कितने मार्क्स होते हैं? पॉइंट्स कितने मार्क्स होते Passing marks you are asking? हैं? नो मैम, टोटल मार्क्स कितने पॉइंट्स रहते हैं, मतलब क्वेश्चंस. So लेजन में गोइथे में 100 marks होता है and there are 5 questions, ठीक है, and you need to get 60% marks, yeah, 60 Okay. marks that you need to get in गोइथे. और Okay. टेल्क में लेजर फर्स्टेहन where we have only 3 parts, उसमें you need to get like 75 marks का होता है, 60% mark. उसमें से 60% marks की जरूरत नहीं है, like otherwise it is 75 points का total होता है, because it is Okay. combined with other parts also, reading and writing. So in total 235 में से you need to get 135 combined with reading, writing and the grammar part. Okay. Total is 135 for टेल्क. For the Yes, passing, yes, the टेल्क, yes, for yes. passing. Okay. जैसे मैडम ने बताया कि इसमें हमें एवरेज 135 मार्क्स लेने हैं. इट इज नॉट दैट अच्छा. इंडिविजुअली यू नीड टू पास. नो, आपको कंबाइंड 135 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 225. Okay. सो आप उसमें मतलब इंडिविजुअली अगर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग वो सब इंक्लूडेड है. तो आपका अगर लिसनिंग और राइटिंग स्ट्रांग है और रीडिंग में यू आर गेटिंग 44 और 43, क्योंकि 75 में से पासिंग मार्क्स 45 हैं, सो इवन देन इट इज Okay. ओके. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah, Gil Saab, please ask your question. हेलो गुड सर. सर एक्चुअली सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे टेल्क है और गुथे है सर, इनकी वैल्यू एक है, बट सम एम्प्लॉयमेंट सर इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? yes sir, if you be specific as far as the reputations goes, as far as the organization goes, all the universities and everywhere TELC and GOTE both are acceptable. Or if you be specific, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि TELC acceptable नहीं है, we'll share with us, we'll get back to you. But as far as knowledge goes, because TELC itself has more than 35,000 centers all over the world for giving the examination. So it is no university, no institutes say no for the TELC examination. Just go to the website, just find it out, और जिस organization में या जहाँ पे आप admission लेना चाहते हो college में, go to their requirement, ask them, TELC is acceptable. Okay sir. Yeah. Thank you, sir. Okay, now Vipin Saxena. Vipin, please ask your question. मेरा क्वेश्चन है सर कि जो अपने श्राइबन का और लेजन ह्यूरन और एक्सप्रेशन का 2 टाइल ऐसे बट है, तो इन केस अगर सर एक टाइल क्लियर होता है और एक टाइल नहीं क्लियर होता है, तो उस कंडीशन में दोबारा से दोनों का देना पड़ेगा कि एक टाइल जो रह रहा है वो दे सकते हैं? नहीं, अगर आपका स्पीकिंग क्लियर हो गया है तो आपको स्पीकिंग दोबारा नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग वाला ही दोबारा देना पड़ेगा. ओके. और अगर आपका रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग वाला क्लियर हो गया है, स्पीकिंग क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको स्पीकिंग ही दोबारा देना पड़ेगा. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग वाला क्लियर है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा. इट इज द सेम. ओके. एंड सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि
जैसे हम गोइते का जो एग्जाम देते हैं तो उसमें हमारे को जो पेपर मिलता है, पेपर पे हमारे को लेजन वगैरह सब देना पड़ता है। तो हमारे पास चांस होता है कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हम जब पढ़ते हैं तो उसमें अंडरलाइन करके उसमें मार्क कर लेते हैं कि हाँ ये रिलेटेड है क्वेश्चन से, थोड़ा थोड़ा हमें अंदाजा लग जाता है। लेकिन टैल्क में भी हमारे को ऐसा कुछ चांस मिलता है क्या कि लेजन जब हम दे रहे हैं तो उसको मार्क करने का कुछ रहता है, क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कुछ हिंट लगी तो हम मार्क कर सकते हैं? So, see, आपके पास 90 मिनट्स होते हैं, मैंने बताया था 60 मिनट्स फॉर द लेजन एंड 30 मिनट्स फॉर द स्प्रैग-बाउस्टाइनर। तो ऐसे नहीं है कि अगर वो पार्ट निकल गया तो आप उस पार्ट पे दोबारा नहीं आ सकते। तो वो 90 मिनट्स में आपको 3 पार्ट लेजन के और 2 पार्ट स्प्रैग-बाउस्टाइनर के करने हैं। तो आप एक बार करके यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन, नॉट चेक कि आपने ठीक किया या नहीं किया, लाइक रिवीजन भी कर सकते हैं इफ यू हैव दैट मच टाइम। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है कि आप उसको अपने हाईलाइट कर सकते हैं कंप्यूटर की उससे, एंड देन यू कैन ऑलवेज फाइंड द आंसर। ऐसे नहीं है कि आपको वो दोबारा रीड करने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपने 3 टाइल्स कर लिए हैं, फिर स्प्रैग-बाउस्टाइनर कर लिया एंड यू वांट टू गो बैक एंड रिवाइज, या फिर आपने एक बार छोड़ दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सेकंड पार्ट शुरू कर लेता हूँ, सो देन और आपके पास टाइम बच गया, सो यू कैन ऑलवेज मतलब you can always revise and read it again and again in that 90 minutes time frame. इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने 1 टाइल टू 2nd टाइल में आप शफल कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज लगता है कि मेरी पुराने वाली पहले पढ़नी है, यू कैन रिवाइज इट एंड यू कैन रेक्टिफाई योर आंसर आल्सो। इट्स नॉट दैट यू हैव गिवन द आंसर एंड योर दैट इज ब्लॉक्ड, नो, यू हैव गॉट 90 मिनट्स टू डू द एक्टिविटी। तो आप अगर एक टाइल्स के आंसर दे भी दिया है, उसको बाद में रेक्टिफाई करना चाहते हो, ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कर सकते हो उसको। सो दैट इज द एडवांटेज। ओके 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 सर, Yeah. Good Okay, thank you, question. sir. Very nice. Yeah, that is there. And Karan sir, मैं after this once it's finished, and I'll send you the link for the registration for the March. This is one. With the registration, I'll send you the one link for the pattern of examination, where Please. that online link will be there. You can forward to the students so that they'll come to know that how this examination keep on going. And with this, I'll send you a few mock tests also for the students, so that students can go through that mock test also. This is one activity. Since the student has to travel from the different area to Chandigarh, so we'll make sure कि जो आपके बच्चे हैं उनको यहाँ पे कुछ स्टेइंग की दिक्कत ना आए, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना आए. So we have got a separate staff, entire team for handling the students coming from outside. So you'll get a support from our side, so that the student feel convenient in Chandigarh itself. Great, thank you sir. Yeah. मतलब वहाँ Yeah. पे कुछ हॉस्टल या इस तरह की डॉर्मेट्री या फैसिलिटी? We were getting lot of queries कि बच्चे जब आते हैं तो उनको रहने की दिक्कत आती है. What we made is to near to our walking distance, we have arranged 3-4 guest house where it is very economical. The room will be somewhere range of 400 to 500 rupees per night, where they will be given the bedding and everything. And nearby the market is there for taking the food also. We have made all the arrangement for the students coming from outside, so will be taken care of. गुड सर, बहुत बढ़िया. ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को मतलब कोई आज नया पर्सन होता है उसको तो फिर दिक्कत रहती है. Yes. होटल लास्ट मोमेंट हाँ, में because hotels में क्या है, हाँ, कॉस्टली होता है, which is very difficult for the students. So वो हम भी है, because already बच्चे बाहर से एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं, to make them comfortable. Since we are here and our team is here, so we'll arrange all these things. So we'll give you the number of the person concerned, so you can distribute to the students. We'll make all the arrangement for the students. Sure sir, thank you. Yeah. ठीक है, all through. Anything? रजनीश. सर एक चीज और रजनीश, पूछना okay. था. जैसे सर लेजन वाला जब हम देते हैं तो हमें सर कुछ मार्क वगैरह करने का सर ऑप्शन रहता है क्या? जैसे हम जब उसका पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लग रहा है तो हम उसमें मार्क वगैरह करके उसको रिलेट बाद में, जैसे बाद में हम उसको फिर रिलेट करके देख रहे थे कि हाँ ये ऑप्शन ठीक लगा हमें, तो कंप्यूटर पे हम देते तो हमें मार्क करने का कुछ ऑप्शन मिलता है क्या? नहीं, ये लेजन में डिजिटल एग्जाम है. डिजिटल एग्जाम है, इसमें आपको कोई अंदर पेपर और पेंसिल भी नहीं मिलती है. एंड क्योंकि सबसे अच्छी चीज है कि आप मार्क करके उसको वापस जाके अगर आपको लगता है यू कैन चेंज योर आंसर. फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ऑप्शंस है आपके पास चेंज करने के, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट.
वो it is same as computer, तो विपिन आप highlight कर सकते हो always like we do in our computers. तो basically अगर आप ऐसा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. The text is given so you can use a highlighter, yellow कर लो text में या कुछ ऐसे करके. जहाँ पे डाउटफुल लग रहा है आपको क्वेश्चन, वहाँ हाईलाइट कर दिया कि वापस उसको देखना है एक बार. ओके, यस रहता है. ओके सर, इसकी एग्जाम फीस कितनी रहती है सर? अगर आप देखो B1 एग्जाम देते हो तो B1 एग्जाम की 21160 प्लस GST एग्जाम की फीस है. 21160 इज द B1 एंड B2 की एग्जाम की है 22080 प्लस GST. और सर अगर एग्जाम देने जाए वहाँ पासपोर्ट भी कंपलसरी रहता है क्या? देखो पासपोर्ट आपका इसलिए कंपलसरी रहता है कि आधार कार्ड भी आपका एलिजिबल है. पासपोर्ट में क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल होती है, बिकॉज सर्टिफिकेट्स में एक बार जो डिटेल आ गई वो चेंज नहीं हो सकती है. एग्जाम्पल प्लेस ऑफ बर्थ है, आपके आधार कार्ड पे प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता. अगर आप मुझे कल को कहोगे कि प्लेस ऑफ बर्थ में मैंने आपको जयपुर लिख दिया है, बट जबकि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ तो समवेयर बीकानेर है एग्जाम्पल, सो द चेंजेस विल मेक लॉट ऑफ कॉस्ट. सो इसलिए पासपोर्ट में आपका प्लेस ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, और आपका नाम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होता है. द सेम विल बी देयर इन योर सर्टिफिकेट. फॉर टेल्क एग्जामिनेशन आधार कार्ड इज इक्वली एप्लीकेबल, बट इट शुड नॉट हैपन कि आधार कार्ड पे डिटेल डिफरेंट हो. यू हैव टू टेल अस, बिकॉज आधार कार्ड पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नहीं होता. यू हैव टू टेल अस कि दिस इज माय फर्स्ट नेम एंड दिस इज माय लास्ट नेम. यू गॉट माय पॉइंट? वो बाद में आपको पासपोर्ट पे भी सेम रखना पड़ेगा. और सर जो ये पासपोर्ट है एग्जाम फॉर्म भरते हैं उस टाइम की रिक्वायरमेंट है या जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं उस टाइम रिक्वायरमेंट रहता है? सर जब आप सेंटर आते हो उस टाइम की अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, भले आधार कार्ड से भर दो. फॉर अस आधार कार्ड इज इक्वली वैलिड. आई एम टेलिंग यू फॉर योर कन्वीनियंस. अगर आपके पास पासपोर्ट है, गिव द पासपोर्ट. इफ यू डोंट हैव, give the Aadhaar card, but the detail should be accurate, whatever you're going to make in the passport. मेरी बात समझ गए? ओके सर, हाँ थैंक यू. ऐसा ना हो कि आप आधार कार्ड में डिटेल आपका सर्टिफिकेट पे आ जाए, कल को आप मुझे कहो कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे डिफरेंट है जबकि मेरा पासपोर्ट पे डिफरेंट है. वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाएगा. जब सर रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम जो डिटेल्स रहती है वही रहती है लास्ट तक? नहीं, जो आप रजिस्ट्रेशन करते डिटेल देते हो उसके बाद हम आपका आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, उसके साथ मैच करेंगे उसको. ओके सर. या थैंक यू सो मच सर. हम लोग लगता है B2 के लिए एक बार B2 के बहाने से एक बार फिर सेशन करेंगे. कई लोगों के क्वेश्चन B2 के भी थे और ताकि बाकी लोग, कुछ लोगों ने अगर मिस भी किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कन्वर्सेशन है मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो बाकी लोग मान लो बाद में मेरे से अप्रोच करते हैं तो उन लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं. ठीक है सर, थैंक यू सर. एनी अदर? अच्छा कोमल, यस. सर जैसे किसी को, जैसे मुझे ही लगा लो स्क्रीन प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा देर तक स्क्रीन की तरफ नहीं देख सकती, तो क्या मुझे एक हार्ड कॉपी मिल सकती है? जैसे आंसर तो मैं डिजिटली उसमें फिल कर सकती हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा सा रीडिंग के लिए मुझे हार्ड कॉपी मिल सकती है क्वेश्चन पेपर की? नहीं बेटा, दिस इज डिजिटल एग्जाम है, इसमें कोई भी पेपर पेन भी अलाउड नहीं होता है एग्जाम का, बिकॉज दिस एग्जाम इज बीन कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ जर्मन एग्जामिनर ओनली, एंड इट इज टोटल डिजिटल एग्जाम, एंड इसमें कुछ भी अलाउड नहीं होता. ओके, थैंक यू सर. या प्लीज. अमर. यस. Hallo Sir, guten Tag. Ja. Ich habe eine Frage. Meistens, wie Sie wissen, wir können nicht so gut verstehen unsere Partner oder Partner gegen Gesprächspartner. So, was machen wir in das Situation? So wenn Sie Ihre Partner oder Ihre Partnerin nicht gut verstehen können, müssen Sie versuchen, selbst das Gespräch zu leiten. Und wenn Sie Deutsch gut verstehen, ich denke, es ist nicht problematisch, die Partner, der Partner, die Partnerin zu verstehen. Ich weiß nicht, aber es ist nicht
immer so, dass sie, like, ich habe auch viele Studenten und sie verstehen der Partner oder die Partnerin einen Part. Ich weiß nicht, was ist das Problem dort. Eigentlich ist es mit mir, dass wenn ich weiß das Wort, aber ich kann nicht so verstehen, dass was sie oder er spricht oder nicht. So, ich denke, Emma, Sie müssen darauf gut vorbereiten und Sie müssen die Wörter lernen und Ihre Vokabel und Ihre Grammatik soll gut sein. Und Sie müssen jeden Tag Deutsch sprechen. Sie müssen jeden Tag versuchen, Deutsch zu sprechen mit Partner oder mit Lehrern, okay? Und wenn Sie einige Wörter nicht verstehen, dann können Sie immer sagen, okay, entschuldigen Sie, bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie noch einmal sagen, oder was bedeutet diese Wörter? Oder wie sagen, Sie können immer versuchen, ja? Können Sie noch einmal wiederholen, ja. Dankeschön. Sehr gut. थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने भी पूरी मोटिवेशन के साथ हर बार की तरह खूब सारे लोग आए और ये चीज मैंने आपको जैसे बताया रिकॉर्ड मैंने किया है। किसी को मान लो वापस से सुनना हो तो मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूंगा इसको यूट्यूब पे ही डाल दूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।